Hello student, Jai Swaminarayan. Today now we continue with the thin cylinder chapter. Okay, we take examples. A thin cylindrical shell with internal diameter 125 mm, wall thickness is 12 mm, is subjected to a steam pressure of 10 Newton per mm square. यहाँ पे सब दिया होगा, आपको जस्ट फॉर्मूलाज अप्लाई करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है इसमें. ओके, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेना है, जो भी डेटा दिया है वो लेना है. आपको फाइंड आउट द सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस दैट इज सिग्मा सी एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इन द शेल मटेरियल दैट मीन सिग्मा एल, वो फाइंड आउट करना है. आपके पास क्या है, डायमीटर है, सब कुछ mm में लेना है. तो इंटरनल डायमीटर कितना है 125 mm, टी कितना है 12 mm. आपके पास फॉर्मूला है सिग्मा सी इज इक्वल टू पी डी बाई 2t एंड सिग्मा एल इज इक्वल टू पी डी बाई 40. और यहाँ पे आपको प्रेशर दिया है स्मॉल पी इज इक्वल टू 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर. तो आपको फॉर्मूला में जस्ट रखना है, तो आपको वैल्यूज मिलेगा सिग्मा सी इज इक्वल टू sigma c is equal to 52.08 Newton per mm square and sigma l is equal to 26.04 Newton per mm square. Then example number 2, a gas cylinder is of internal diameter 1.2 meter and metal thickness 20 mm. Find the allowable pressure of the gas inside the cylinder if the tensile stress in the material is not to exceed 100 Newton per mm square. Small d is equal to 1.2 meter is equal to 1200 mm. डी आपको दिया है 1.2 मीटर, वॉल थिकनेस दिया है, मेटल थिकनेस दिया है 20 mm, दैट मीन्स टी इज इक्वल टू 20 mm. फाइंड द अलाउएबल प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड द सिलेंडर, दैट मीन्स सिग्मा सी. फाइंड द अलाउएबल प्रेशर, दैट मीन्स पी आपको फाइंड आउट करना है. इफ द टेंसाइल स्ट्रेस इन द मटेरियल इज नॉट टू एक्सीड 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, दैट मीन्स सिग्मा सी इज इक्वल टू 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर आपको दिया है. तो सिग्मा सी इज इक्वल टू पी डी बाई 2t, दैट इज सिग्मा सी का वैल्यू कितना है 100 इज इक्वल टू पी इंटू 1200 डिवाइड बाई 2 इंटू 20, दैट इज पी इज इक्वल टू 3.33 न्यूटन पर mm स्क्वायर. Then next example, a water main of 800 mm internal diameter is carrying water at a pressure rate of 100 mm. If the allowable hoop stress is 20 Newton per mm square, that means sigma c, value of sigma c is equal to 20, and find the suitable thickness of the pipe. Take a density of water that is gamma is equal to 10 kilonewton per meter cube. That means 10 into height कितना है 100 मीटर है, तो कितना आएगा 1000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, वेयर गामा इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर, एच इज इक्वल टू हेड. नाउ सिग्मा सी इज इक्वल टू पी डी बाई 2t, तो आपके पास सिग्मा सी कितना है, दैट इज 20 एंड पी डी बाई 2t, दैट इज आपके पास p है, d है, 2t, t का वैल्यू नहीं है, तो इस पे से आपको t का वैल्यू मिलेगा. ओके, Then a boiler shell is to be fabricated from the mild steel plate of 12 mm thickness, that means T is equal to 12 mm, and has to contain an effective steam pressure of, that is steam pressure is 1232 kilonewton per meter square. If the tensile stress in the mild steel plate must not exceed 106, that means sigma c. Determine the maximum permissible diameter of the boiler shell. What will be the maximum intensity of shear stress at any point in the material, that means P is equal to 1232 kilonewton per meter square, then T is equal to 12 mm, sigma c is equal to 106 newton per mm square, then sigma c is equal to P d by 2t. ओके, तो P सिग्मा सी का वैल्यू कितना है 106, P इंटू डी 2 into t. Okay, that is the value of d is equal to 2064.93 mm. Now sigma l is equal to pd by 40. तो pd कितना है pd by 40, that means p का वैल्यू है 1232, जो भी आपने फाइंड आउट किया इन न्यूटन पर mm स्क्वायर, 1.232 इंटू 2064.93 डिवाइड बाई 4 इंटू 12, तो आपको मिला 53 न्यूटन पर mm स्क्वायर. नाउ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू सिग्मा सी माइनस सिग्मा एल डिवाइड बाई 2. सिग्मा सी का वैल्यू कितना है, दैट इज 106
एंड सिग्मा एल का वैल्यू कितना है, दैट इज 53 डिवाइड बाई 2, दैट इज 26.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर. ओके, a cylindrical shell has a 3.5 meter length, 1.2 meter diameter and 10 mm thickness. The shell is subjected to the internal pressure of 2 Newton per mm square. Calculate the maximum shear stress and change in the dimension of the shell. तो आपके पास d कितना है, 1.2 मीटर है, that is converted into mm. Length is equal to 3.5 meter, that is 3500 mm. t का वैल्यू 10 mm, then p is equal to 2 Newton per mm square. Capital is equal to 2 into 10 raised to 5 Newton per mm square. Mu is equal to 0.3. तो सिग्मा c इज इक्वल टू पी डी बाई 2t एंड सिग्मा एल इज इक्वल टू पी डी बाई 4t. आपके पास वैल्यू सभी है, रख दो यहाँ पे, फाइंड आउट कर दो सिग्मा c सिग्मा एल. एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू सिग्मा c बाई ई माइनस सिग्मा एल बाई एम ई. तो सिग्मा c बाई ई, तो सिग्मा c कितना है, दैट इज 120 डिवाइड बाई ई का वैल्यू कितना है, 2 इंटू 10 रेज़ टू 5 माइनस सिग्मा एल इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 रेज़ टू 5 इंटू यहाँ पे क्या है 1 बाई एम का वैल्यू दैट इज 0.3 इज इक्वल टू म्यू. तो यहाँ पे मल्टीप्लाई इंटू 0.3 इज इक्वल टू 5.1 इंटू 10 माइनस 4. उसी तरह से एप्सिलॉन 2 का वैल्यू. Then it is cylinder shell, 900 mm diameter, 3 meter long and 10 mm thick, is subjected to internal pressure of 2 megapascal, that is 2 Newton per mm square. Find the circumferential stress if the intensity of the longitudinal joint is 25%. D is equal to 900 mm, then L is equal to 3 meter, that is 3000. Then value of T is equal to 10 mm, then value of P is equal to 2 megapascal, that means 2 Newton per mm square. N is equal to 75%, that for sigma C is equal to PD by 2TN. ओके, ये फॉर्मूला है हमारे पास, तो वो जस्ट अप्लाई करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है. ओके, तो सिग्मा C इज इक्वल टू 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर. देन एग्जाम्पल नंबर 9. ओके, तो ए वर्टिकल सिलिंड्रिकल steel storage tank has 30 meter diameter and the same is filled up to the depth of 15 meter with the gasoline of the relative density 0.74. If the yield stress for the steel is 250 megapascal, find the thickness required for the wall plate and adopt a factor of safety of 2.5 and neglect the localized bending effect. The density of gasoline कितना है, that is 0.74 into 1000, तो कितना आएगा 740 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. ओके, तो डेंसिटी ऑफ वाटर तो kg पर मीटर क्यूब 0.74 इंटू 1000 करेंगे तो क्या मिलेगा 740 kg पर मीटर क्यूब. देन प्रेशर P इज इक्वल टू रो जी एच, तो रो का वैल्यू है दैट इज 740, देन जी का वैल्यू 9.81 एंड एच का वैल्यू है हमारे पास 15. तो ये सब का वैल्यू रख के हमें प्रेशर P 0.1089 न्यूटन पर mm स्क्वायर फाइंड आउट करना है. यील्ड स्ट्रेस ऑफ द स्टील दैट इज 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर. सिग्मा C लेस देन 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, दैट इज सिग्मा C इज इक्वल टू PD बाय 2T. दैट इज सिग्मा C का वैल्यू कितना है 250 हमें दिया है. सिग्मा C का वैल्यू हमने सिग्मा C हमें दिया है तो 250 PD बाय 2T, तो PD का वैल्यू है 2T का वैल्यू, T का वैल्यू नहीं है 6.53 mm. यूजिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी दैट इज 2.5, तो 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करो कितना मिलेगा 16.335 mm. एडॉप्ट थिकनेस T इज इक्वल टू 16 mm. Okay. Then next, a thin stainless spherical shell of 1.5 meter diameter is 8 mm thick. यहाँ पे थिकनेस दिया है, डायमीटर दिया है, प्रेशर दिया है 1.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ई दिया है 2 इंटू 10⁵ mm मेगा पास्कल दैट इज न्यूटन पर mm स्क्वायर. 1 बाई m इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू 0.3 दिया है. तो क्या फाइंड आउट करना है, इंक्रीज इन द diameter and capacity of the shell. The increase in diameter and capacity of the shell.
तो इंक्रीज इन डायमीटर तो कितना आएगा, चेंज इन डायमीटर एंड चेंज इन वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला हमारे पास है ही डेल्टा डी डिवाइड बाई डी इज इक्वल टू पी डी बाई 4TE 1 माइनस 1/m। तो पी डी बाई 4T डेल्टा डी, तो यहाँ पे डी का वैल्यू कितना है, दैट इज़ 1500। ओके, देन पी डी बाई 4TE तो कॉमन निकाल दिया है हमने, तो पी डी बाई 4TE 1 माइनस दिस, तो ये ब्रैकेट में ले लेना है डेल्टा डी, तो डी से सिंपली मल्टीप्लाई किया है तो हमें वैल्यू मिलेगा 0.569 mm। देन चेंज इन द वॉल्यूम तो कितना आएगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू पी डी रेस टू 4 डिवाइड बाई 8TE 1 माइनस 1/m। तो पाई इंटू 1.5 इंटू 1500 रेस टू 4 divide by 8 into 8 into 2 into 10 raised to 6, that is 1 1 minus 1/m, that is 1 minus 0.3, तो क्या मिलेगा 1.304 लीटर्स मिलेगा आपको वैल्यू। ओके, then a spherical shell of 600 mm diameter and 10 mm thickness is subjected to the internal pressure of 2 Newton per mm square. Calculate the change in the diameter and change in volume of the shell. Take E is equal to 200 megapascal 1/m is equal to 0.27। तो सॉल्यूशन में क्या आएगा, तो सबके वैल्यूज दिया है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो दैट इज़ चेंज इन द डायमीटर, दैट इज़ डेल्टा डी बाई डी। तो फार्मूला आपके पास है ही, कौन सा स्फेरिकल सेल है तो उसके लिए रिलेटेड जो भी फार्मूला है वो ले लेना है। तो डेल्टा डी इज इक्वल टू 0.0657 mm। ओके, और डेल्टा वी इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम एंड चेंज इन डायमीटर, तो पाई पी डी रेस टू 4 डिवाइड बाई 8TE 1 माइनस 1/m। तो सबका वैल्यू रखो तो डेल्टा वी हमें मिलेगा। ओके, then a thin spherical shell of diameter 600 mm thickness 3 mm is full of water. If is then subjected to the internal pressure by pumping the additional 60,000 mm cube of water. ओके, तो इंटरनल प्रेशर पी कितना है 60,000 mm स्क्वायर ऑफ वाटर, दैट इज डेल्टा वी कितना है हमारे पास 60,000 mm क्यूब। डिटरमाइन दिस इंटरनल प्रेशर, तो डी है, टी है, डेल्टा वी दिया है, ई का वैल्यू दिया है दैट इज 200 गीगा पास्कल, तो 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर 1/m का वैल्यू कितना है 0.3। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू पाई पी डी रेस टू 4 डिवाइड बाई 8TE दैट 1 माइनस 1/m। तो आपको ये सब वैल्यू रखना है, तो आपको एक वैल्यू मिलेगा दैट इज पी, द वैल्यू ऑफ पी इज इक्वल टू 1.0 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, then a cylindrical vessel 2 meter long and 500 mm in diameter with 10 mm thick plates is subjected to an internal pressure of 3 megapascal। okay, तो pressure is equal to 3 megapascal is equal to 3 Newton per mm square, and calculate the change in volume of the vessel and take E is equal to 200 gigapascal and Poisson's ratio is equal to 0.3 for the vessel material। चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द वेसल, तो फार्मूला है तो यूज़ करना है सिंपली चेंज इन द वॉल्यूम, तो LDTP है। ओके, सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस है तो P/2T एंड दूसरा है तो PD/4T, देन सिग्मा एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू फार्मूला है, एप्सिलॉन 2 की फार्मूला है, उस पर से फाइंड आउट करो। तो चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2 इंटू L एंड चेंज इन वॉल्यूम इज दिस। तो आपके पास अभी फार्मूलाज है तो जो आपको जस्ट वैल्यू ही रखना है अंदर, तो चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2 इंटू L, तो एप्सिलॉन 2 का वैल्यू हमारे पास है 4.79 10⁻⁵ इंटू 3000। तो V का वैल्यू V इज इक्वल टू A इंटू L, तो E का वैल्यू कितना है π/4 इंटू D स्क्वायर इंटू L स्क्वायर। तो यहाँ पे π/4 D स्क्वायर कितना है, π/4 D स्क्वायर कौन सा है, ओके, तो π/4 D कौन सा है इसमें, तो वैल्यू ऑफ D इज इक्वल टू 1000 है, 1000 लेना है स्क्वायर इंटू 3000 दैट इज दिस।
तो डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2 प्लस 2 एप्सिलॉन 1। तो आपके पास ये सब फॉर्मूला से ये सब एक्स्ट्रा जो भी है फॉर्मूला पे से हमें डेल्टा भी मिलेगा 961.954.8 मीटर। मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस सिग्मा सी माइनस सिग्मा एल डिवाइड बाई 2 दैट इज 41.67 minus 20.83 divided by 2. Okay, then it thinks sphere of 1.5 meter diameter is filled with a fluid which exerts internal pressure of 3 Newton per mm square. That means P is equal to 3 Newton per mm square. Calculate the thickness required for the sphere if the change in the volume is not to exceed 2% of the ओरिजिनल वॉल्यूम। तो क्या मिलेगा, डी का वैल्यू है 1.5 मीटर 1.5 मीटर दैट इज़ 1500 दैट मीन्स 1500 mm। देन पी का वैल्यू 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो हमारे पास फॉर्मूला कौन सी है स्फीयर के लिए, π/6 डी क्यूब, वो फार्मूला पे से हमें ये वैल्यू मिलेगा। और ओके डेल्टा वी कितना दिया है 2% ऑफ द वी दैट मीन्स 2 डिवाइड बाई 100 इंटू वी दैट इज 1.7671 okay that is v into 10⁶, that is 35.342 into 10⁶ mm cube. Assume the E is equal to 200 into 10⁵ Newton per mm square. 1 by m is equal to 0.3. Delta V is equal to pi p d raised to 4 divided by 8 t e 1 minus 1 by m। तो इस पे से हमें वैल्यू ऑफ टी मिलेगा दैट इज 0.59 mm। ओके, A cylindrical boiler to generate the internal steam pressure 2 Newton per mm square is to be fabricated using 12 mm thick plate having a limiting tensile stress of 1 to sigma c is equal to this if the elasticity of the longitudinal and circumferential joint is equal to, that means longitudinal NL is equal to 75% and LC is equal to NC is equal to 40% respectively. Then find the safe diameter of the boiler। तो P का वैल्यू दिया है, T का वैल्यू दिया है, सिग्मा सी एन टी ओके वो सब का वैल्यू दिया है। तो आपको सिग्मा सी का वैल्यू हमारे पास है तो उस पर से आपको क्या कौन सा वैल्यू फाइंड आउट करना है, स्मॉल डी। और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस जो भी है तो सिग्मा एल इक्वल टू पी डी बाई 4t n। ओके, पी डी बाई 4t/nc तो कितना आएगा 120 इज इक्वल टू 2 इंटू डी 4 इंटू टी का वैल्यू कितना है 12 एंड डी एन सी का वैल्यू है कितना है 0.40। तो क्या मिलेगा डी एफिशिएंसी। ओके, यहाँ पे एन सी है वो एफिशिएंसी है। ओके, तो डी का वैल्यू कितना मिलेगा 1152 mm। सेफ डायमीटर इज द स्मॉलर ऑफ द अबाउ टू वैल्यूज दैट मीन्स इसमें से स्मॉल कौन सा है दैट इज द स्मॉल जो भी सेफ डायमीटर है वो स्मॉलर होता है। ओके, वो आपको याद रखना पड़ेगा। थैंक यू।